شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا. جناب ڈپٹی اسپیکر, آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ کرونا وائرس کا جس کا پوری دنیا اور پاکستان بھی شکار ہے, یہ جنوری میں چائنا میں شروع ہوا. ہمارے لیے اہم بات ہے کہ جب تک یہ ہمارے تک پہنچا اور 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں ڈسکور ہوا, ہمارے پاس کچھ ہفتے تھے اس حکومت کے پاس کہ وہ منصوبہ بندی کی جاتی, پیش بندی کی جاتی, جس کے ذریعے ہم اس سے بچ سکتے تھے. معاملہ چلا. جناب ڈپٹی اسپیکر, 9 کام کرنے والے تھے اس حکومت کے پاس اہم, جن کے ذریعے ہم نے کورونا سے لڑنا شروع کرنا تھا. سب سے پہلا کام تھا بارڈر کنٹرول. پاکستان کی سرحدوں کو استعمال کرنا تھا اس چیز سے روکنے کے لیے کہ اگر انفیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں تو یا انہیں پراپر کوارنٹین کریں, ان کا کوئی انتظام کریں, ان کو ٹریس کریں. تافتان میں بھی اور پاکستان کے تمام جو ایئرپورٹس ہیں, سی بارڈرز ہیں, وہاں یہ حکومت پاکستان کے بارڈرز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی. میری امید تھی, ہمیشہ خوش فہمی رہتی ہے کہ وزیر داخلہ یہاں آ کر بتائیں گے کہ پاکستان کے بارڈرز پر کیا ہوا, کیونکہ جناب اسپیکر جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ ایگزیکٹو کا ادارہ ہے. اٹ از این انسٹیٹیوشن آف دی ایگزیکٹو برانچ. پارلیمان اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتی. پارلیمان تو ان وزراء کو ریکگنائز کرتی ہے جو یہاں موجود ہیں, پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں. لیکن یہاں وزیر داخلہ صاحب تشریف نہیں لائے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کے بارڈرز پر کیا ہوا, پاکستان کے ایئرپورٹس پر کیا ہوا, اور یہ وائرس پاکستان کے اندر کیسے آیا. اور تافتان کی جو کہانی ہے وہ کبھی باہر آئے گی کہ کس قسم کی قاتلانہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا تافتان پہ, جس کا نتیجہ ویسے بھی وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہے, لیکن اگر وہاں کنٹرول ہو جاتا تو یہاں آغاز ہونے میں شاید کچھ اور دیر لگ جاتی. ہمیں جو محافظ ہیں, اور کورونا میں ہمارے محافظ پاکستان کے ڈاکٹر ہیں, پاکستان کی نرسیں ہیں, پاکستان کا پیرا میڈیکل سٹاف ہے, ہسپتالوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں. کیا یہ حکومت ان محافظوں کو کی حفاظت کرنے میں کیا نتیجہ ہے؟ مکمل ناکامی. اور جب ڈاکٹروں نے پروٹیسٹ کیا جناب اسپیکر, اور کراچی سے لے کر پشاور تک پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اور حکومت کا جواب کیا تھا؟ ڈاکٹروں کو ڈنڈے مارے گئے, ان کو حوالات میں راتیں گزارنی پڑی, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پھر بھی نہیں آیا. اور بڑے عرصے کے بعد سہک سہک کر کچھ ہمیں انتظام ہوا, یہاں تک کہ جب شہباز شریف صاحب تشریف لائے 23 مارچ کو, تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ 10,000 پی پی کٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی, پورے پنجاب میں بھیجی, پھر دوبارہ بھیجی کہ بھئی جہاں نہیں کچھ پہنچ رہا تو کچھ تو پہنچے. لیکن آج تک بھی جناب ڈپٹی اسپیکر یہ بات حقیقت ہے بشمول اسلام آباد کہ دس گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو پروٹیکٹ آور پروٹیکٹرز. ہمارے محافظوں کو کورونا کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے. ہم سب نے اس خاتون ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی ہے جو اسلام آباد میں جو بین ڈال رہی ہے کہ مجھے کورونا ہے, خدا کے لیے مجھے کس طریقے سے بچائیں. تو محافظوں کی حفاظت میں یہ ناکام ہوئے. تیسرا جو کام تھا, جو سب سے اہم معاملہ ہے ان 9 ایشوز میں, وہ ہے ٹیسٹنگ. اور ٹیسٹنگ کا ایشو یہ ہے کہ WHO کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے 16 مارچ کو یہ کہا کہ وہ حکومتیں جو ٹیسٹنگ نہیں کر رہی وسیع بنیاد پر, اور میں ان کے الفاظ دہرا دیتا ہوں, they are trying to fight a fire blindfolded. وہ اندھے ہو کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج تک بھی جو اعداد و شمار جوان میں رکھے بھی گئے کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ کی ہم وہ شرح حاصل ہی نہیں کر پائے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو سکے کہ پاکستان میں وائرس پھیلا کتنا ہے. اور آج تک بھی میں بڑے دکھ سے عرض کروں گا, اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان میں کتنا کورونا ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مختلف صوبوں میں بہت وائڈ ویریشنز آ رہی ہیں ڈیتھ ریٹس میں.
सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 8% है, तो कहीं 1.7% है। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्या 8% सच है या 1.7% सच है, हमें नहीं मालूम। तो लिहाजा ये कह देना कि जी हमने डेटा की बुनियाद पर पॉलिसी बन रही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस लेवल की टेस्टिंग ही नहीं हुई। और टेस्टिंग में क्या स्टैंडर्ड है WHO का? 15,000 लोगों को आपने टेस्ट करना है पर मिलियन पॉपुलेशन, और अभी गालिबन हम 1,000 तक भी नहीं पहुंच पाए। मेरा यह ख्याल था कि जो भी साहब यहां तशरीफ लाएंगे, पहली तो एक्सपेक्टेशन और मुतालबा था कि चूंकि सेहत का कलमदान वजीर आजम के हाथ में है, वजीर आजम का फर्ज था कि वो आकर 22 करोड़ आवाम को इस सवाल खड़े होकर बताते कि उन्होंने क्या काम किया, हमारी टेस्टिंग रेशो क्या है, और इस वक्त हम किस तरह आगे जा रहे हैं। वजीर खारजा को एक काम सौंपा गया, उन्होंने नहीं बताया हमारी पर मिलियन टेस्टिंग रेशो क्या है। और उसके बाद अगला जो मामला था, सराहत से इबलाग करना था, क्लियर कम्युनिकेशन करनी थी कौम के साथ। और मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि इस ऐवान के कायद वजीर आजम की तरफ से सिर्फ कंफ्यूजन फैलाया गया है। और जिस तरह लॉकडाउन के ऊपर उन्होंने एक अजीब खेल खेला इस कौम के साथ, आज तक हम हैरान हैं। और ये उनका जुमला तारीख में लिखा जाएगा, और लिखा जाना चाहिए कि अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया। वो कौन अशराफिया है जो वजीर आजम को बुलडोज करके लॉकडाउन करवा गई इनसे? और अगर वो एग्री नहीं करते थे तो फिर उनकी मर्जी के बगैर इस मुल्क में लॉकडाउन कैसे हुआ? हमें उसका जवाब चाहिए था, लेकिन चूंकि वजीर आजम तशरीफ नहीं लाते, हमें उनका जवाब नहीं मिला। तो वो जो क्लियर सेंस देनी थी कि भाई क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा ये था। और आज भी ये हुकूमत ये करने में नाकाम है कि हमें कोई मीट्रिक दें, हमें कोई नंबर दें कि भाई इतना ट्रांसमिशन रेशो होगा तो फिर हम लॉकडाउन नरम करेंगे, इतना ट्रांसमिशन रेशो होगा तो हम उसे खोल देंगे। आज तक भी वो तमाम फैसले लॉकडाउन करने के, और लॉकडाउन का हाल ये था जब ये लगाया भी गया था फैज अहमद फैज माजरत के साथ, कि वो लॉकडाउन सारे मुल्क में जिसका असर ना था, वो लॉकडाउन उन्हें बहुत नागवार गुजरा है वजीर आजम साहब। किसी मीट्रिक के बगैर वो लॉकडाउन लगा दिया गया, और अब किसी मीट्रिक के बगैर वो लॉकडाउन खोल दिया गया। और आज तक हमें नहीं मालूम, जिन मुल्कों की मिसालें देते नहीं थकते, आंगेला मर्केल जो चांसलर ने जर्मनी की, उन्होंने क्लियरली उन्होंने कहा जी अगर 1.4 रेशो होगी तो हम ये करेंगे, 1.3 ट्रांसमिशन रेशो होगी हम ये करेंगे, और 1.1 या उससे कम हुई फिर हम खोलना शुरू करेंगे। हमें नहीं मालूम किस बुनियाद पर फैसले हुए। आज तक हमारे पास कोई मीट्रिक नहीं है, और इसमें भी मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट नाकाम हुई है। अगला काम यह था कि पूरे मुल्क को इकट्ठा करना था, वफाक और सूबों को इकट्ठा करना था। हमने जो परसों वजीर खारजा की तकरीर सुनी, उसका एक लुब्बे लुबाब था, और सूबों को क्या पैगाम था? जागते रहना, वफाकते ना रहना। ये ऐसे है कि वफाकी हुकूमत बैठकर सूबों का तमाशा देख रही है, कभी उसको बात कर रहे हैं, कभी उस पर बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत कहती है जी वो वाली दुकानें खोल दें, हम अपने सूबा पंजाब में जाते हैं तो अगले दिन पुलिस आके वो दुकानें बंद करवा रही, कुछ मालूम नहीं है क्या हुआ। और ये काम था कंसेंसस पैदा करने का, पूरे सूबों में उनको साथ लेकर चलने का, जिसमें ये हुकूमत आज तक नाकाम है। 2 महीने हो गए। छठा जो काम था, बड़ा सादा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है कि वफाक जो यूटिलिटी स्टोर चलाता है उनको स्टॉक भी करना था। यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े, चंद चीजें हैं, नहीं वो पार्लियामेंट लॉज वाला होगा, उसमें शायद कुछ चीजें पड़ी होंगी, लेकिन जहां भी जरूरी अशिया की जरूरत है आवाम को, वहां यूटिलिटी स्टोर आज तक स्टॉक नहीं हो सका। आया है स्टॉक, चंद घंटे रहा, फिर गायब हो गया। और उसके आगे जी अरबों पे भी आ जाते, अभी उसमें भी बात करनी है। जो अहम तरीन मामला टेस्टिंग के बाद है जनाब स्पीकर, वो ये था जिसके लिए हमें बड़े दुखी दिल दिखाए गए हैं, और हकीकत है कि हम सबको उसमें परेशान होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो डेली काम करने वाले हैं, उनका क्या होगा। लेकिन जनाब स्पीकर नहीं पाई कि उन दिहाड़ीदार मजदूर जिनका नाम लेकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन तक कैसे पहुंचना है।
उन तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। इमदाद सिर्फ वो पहुंची है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डेटा मौजूद था जहां। उसके अलावा जो करोड़ों मजदूर बैठा हुआ है उसको उस तक पहुंचने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का कोई निजाम नहीं है, और सिर्फ एक निजाम बनाया गया और वो सियासी मजाक किया गया टाइगर फोर्स के नाम पर। बल्दियाती इलेक्शन जीतने की साजिश की गई और अभी तक वो फोर्स भी किसी भी तरह किसी भी मुल्क में एक जगह भी दिहाड़ीदार मजदूर तक नहीं पहुंच पाई। सिस्टमैटिकली जो काम पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग राशन बांट कर रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान के दिहाड़ीदार मजदूर सरकार से कोई चीज उनको नहीं मिली। अगला जो मामला था वो ये था कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी खुरम दस्तगीर साहब। जी जाफिकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आठवां काम यह था हुकूमत का कि पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, जो मुल्क वापस आना चाहते हैं, उनकी जल्द अज जल्द वापसी का इंतजाम किया जाता। उसमें भी हुकूमत यकसर नाकाम हुई है। हफ्तों लग जाते हैं। बहुत कोई वजीफे किए होंगे कि 8 हफ्ते बाद अमेरिका की फ्लाइट चली गई, अभी तक लंदन में लोग फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की जो वहां काम करते हैं फंसी हुई है, लेकिन हुकूमत कोई बाकायदा मैकेनिज्म, कोई शेड्यूल इशू करने में नाकाम है और वो मायूस हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सारे अरकान असेंबली हैं जिनको उनके फोन आते हैं। मुझे आए हैं, मुझे चाइना से फोन आए हैं, मुझे इंग्लिस्तान से फोन आए हैं, मुझे दुबई और सऊदी अरब से तो बेतहाशा फोन आए हैं कि जी हम क्या करें, हम फंस गए। और यहां दुरुस्त तौर पे कहा गया कि पीआईए उनसे ज्यादा किराया वसूल कर रही है और उन तक पहुंचने का, पीआईए तक पहुंचने का कोई तरीकेकार नहीं है। दुबई में जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने पाकिस्तान काउंसलेट जाते हैं तो उन्हें काउंसलेट बंद मिलता है। वो कहते हैं जी हमें फोन करें, ऑनलाइन जाएं। मजदूर ऑनलाइन नहीं है जनाब स्पीकर, और 300-300 रियाल जब फालतू लेते हैं आप फी टिकट के, तो ये वो गरीब है जिनके लिए आपका दिल टूटता है। हुकूमत का कॉन्डक्ट इस मामले में भी बिल्कुल नाकाम है। आखिरी बात जो करनी थी वो ये 9वां जो हुकूमत की ड्यूटी थी वो ये थी कि पाकिस्तान की आने वाली जो मुआशी सूरत हाल है, एक तो उसकी ये भी मुझे खुशफहमी रहती है जनाब स्पीकर, पता क्यों, हालांकि बड़ी मार खा ली है, कि वजीर खजाना आकर यहां खड़े होकर बताएंगे इस ऐवान को कि वो क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मुईशत के बारे में। क्या इफेक्ट आया है? जो 1.4 अरब डॉलर का आपने कर्जा लिया IMF से, वो आप किधर खर्च कर रहे हैं? जो दूसरे कर्जे आपके जो हैं वो डिफर हुए हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हैं?
कोई हुकूमत की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है, ना इस ऐवान को ना पाकिस्तान को। और ये सवाल रहेगा कि वो जिस 1200 अरब का पैकेज आप कहते थे आपने दिया है, एक्चुअल रिलीफ उसमें से 400 अरब रुपए है और वो नहीं पता किधर, अभी तक किसको डिस्पेंस हुआ है। तो ये बात अकाउंटेबिलिटी की ये नहीं है कि जी हम उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को, जिनमें हमारे ट्रेजरी बेंचेस के भाई और बहनें भी शामिल हैं, उनको बताएं आके कि हुकूमत ने क्या पेशबंदी की है, या जो आने वाला डीप डिप्रेशन है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। और फिर आकर एतराफ भी करें कि कोरोना से पहले भी पाकिस्तान की मुईशत का यह हुकूमत बेड़ा गर्क कर चुकी थी। उससे पहले ही जो ग्रोथ रेट था एक्सपेक्टेड, जब फरवरी के नंबर्स आए, वो 2% से कम था जीडीपी ग्रोथ रेट। अब वजीर खजाना ने परसों फरमाया टीवी पे कि जी -1.5 होगा। 1952 के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सुकड़ने जा रही, पर उसका कोई तफसीली हमें आया प्लान? यहां कोई प्लान नहीं आया। तो लिहाजा हम सब हवा में हैं कि एक तरफ एक आफत आई हुई है, लोग जो घरों से निकलते हैं उन्हें हुकूमत कहीं नजर नहीं आती, और हम जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जब यहां आके जानना चाहते हैं तो यहां से क्या होता है। जनाब स्पीकर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हुकूमत की तरफ से जो ओपनिंग स्पीच की गई उसने पाकिस्तान के सूबों पर इल्जामात लगाए, और पहले मिनट से ही यहां माहौल जो है वो तलख हो गया। हम तलखी क्यों करें जब हम सब के ऊपर बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी नस्ल के, रंग के, जबान के, कोरोना सबके ऊपर आया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक मौका था पाकिस्तान को यूनिफाई करने का, लेकिन क्या करें, वजीर आजम की अना उनके आड़े आ जाती, वो कंसेंसस नहीं करना चाहते। और मैं इसका ऐनी शाहिद हूं कि फरवरी 2019 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर मिसाइल ताने हुए थे, तब भी वजीर आजम ने आके ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाया। कोरोना में फिर मौका मिला, फिर नहीं मिलाया। तो कंसेंसस क्रिएट किए बगैर, इकोनॉमिक प्लानिंग दिए बगैर हम, जनाब स्पीकर, इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि आज का जो सो कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन है वो ना स्मार्ट है ना लॉकडाउन है, वो एक ढकोसला है। और जब वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि जी अगर खराब लोगों ने बिहेव ना किया तो हम फिर लॉकडाउन लगा देंगे, ऐसे नहीं हो सकता जनाब स्पीकर। तो यहां एक ऐसी हुकूमत हमारे सामने है तो मुसलसल तीसरे पब्लिक हेल्थ चैलेंज में नाकाम हुई। पहला चैलेंज जिसका जिक्र किया गया, मैं कह देता हूं, पोलियो का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून 8 केसेस छोड़कर गई थी, आज 250 से तजावज हो गए, क्योंकि एक नाहल और करप्ट शख्स को लगाया गया उसका हेड। तो पोलियो में जहां पाकिस्तान करीब जा रहा था पोलियो खत्म करने के, अब फिर उसमें जो है दोबारा डेंजर जोन में चला गया। जी मेरा टाइम खत्म हो रहा है जी। दूसरा इशू, आखिरी मिनट है आपका जी, दूसरा इशू मुकम्मल करें। जो था डेंगू से लड़ना था, लेकिन डेंगू से लड़ने की बहुत अजीम हिकमत अमली आई कि जी ठंड आने दे तो खुद ही खत्म हो जाएगा, लोगों को मरने दे। और अभी जिसकी बात हो रही है जनाब स्पीकर, जिसमें मैं इख्तिताम करना चाहता हूं कि स्मार्ट लॉकडाउन और हर्ड इम्यूनिटी ये धोखे हैं, ये कहने के कि हमने पाकिस्तान के अवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया। हर्ड इम्यूनिटी मींस आपने पाकिस्तान को के अवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है आपने छोड़ दिया है, और वफाकी हुकूमत बैठकर सवाए बयानात जारी करने के। और अगर कोई काम कर रही है, ये घड़ी महशर की है, तू अरसा महशर में है, ये हुकूमत के लिए कह रहा हूं। अमल दाखिल कर गाफिल, अगर कोई दफ्तर में है तो मैं बताते ना आपने क्या किया, क्या अमल किया है। सिफर अमल है, और नतीजा ये है, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है, कि पाकिस्तान में हर रोज कोरोना की इंफेक्शंस बढ़ रही हैं, अमवात बढ़ रही हैं, कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर लॉकडाउन कैसे खुल गया। सजेशन मैं दे रहा हूं, और हालात ये हैं, शेक्सपियर ने कहा था, अलास पुअर कंट्री ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ व्हेन sighs and groans and shrieks rend the air where violent sorrow reigns across the land। वजीर आजम ने अपने मखमसा और तजब्जब और तासुब के मंदिर पर पाकिस्तानियों की बलि चढ़ा दी, और हम देख रहे हैं। सजेशन ये है मेरे भाई, फिर मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत देता हूं। सजेशन ये है, अभी भी मौका है, पाकिस्तान की मैपिंग करनी है,
यूनियन काउंसिल वाइज मैपिंग करनी है, ग्रीन येलो रेड मैपिंग करनी है। उसके लिए डेटा चाहिए, उसके लिए रैंडम टेस्टिंग चाहिए। उस तक पहुंचने के लिए जो मदद करनी है, ये अवान मुत्तहिद होगा आपके साथ। लेकिन आप हमें क्या सुनाते हैं कि 18वीं तरमीम प्रॉब्लम है। कल ये अभी सवाल उठेगा कि काबीना ने कौन सी तरमीम की है इलेक्शन लॉज में, हम जानना चाहेंगे। कोरोना तरजीह नहीं है, 18वीं तरमीम तरजीह है, एनएफसी तरजीह है, इलेक्शन लॉज में तरमीम तरजीह है। पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं और हुकूमत, मुझे दुख से कहना पड़ेगा, एक बड़ा कातिलाना तमाशा देख रही है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी जनाब इंजीनियर साबिर हुसैन कैंप खानी।